Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back each and everyone to Steven Sir Makes It Easy, where the task today is to do one extra practice problem for the chapter of Bill of Exchange. I am expecting, ये मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे ही ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, आप कुछ तैयारी तो ज़रूर कर ही लोगे. नॉर्मली 2 पेजेस का जर्नल आपको लगता है, और थोड़ी देर में जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम आपको कैसे प्रिपेयर करना है. अगर आप मेरे पीछे का जो क्वेश्चन है वो पढ़ो. उदय कौन है? आई डोंट नो, पढ़ लेते हैं. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट. 1 मिनट. मेनी स्टूडेंट्स. सब पहला वर्ड तो ड्रॉवर ही होता है. नहीं, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब कुछ भी और कभी भी गूगली बॉल आ सकती है. उदय परचेस्ड, उदय खरीद रहा है, वो बायर है. गुड्स फ्रॉम शंकर, तो शंकर सेलर है. शंकर सेलर, उदय बायर. लास्ट लाइन. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर. ड्रॉवर. सो कंफ्यूजन हो सकती है, आप कंफ्यूज मत होना. फर्स्ट लाइन हमेशा थोड़े ध्यान से, थोड़े हौले हौले, धीरे धीरे पढ़ लेना ताकि आप कोई गड़बड़ी ना करो. ओके, सो डायग्राम किसका बनेगा? डायग्राम हमारे सेलर का बनेगा जी. सेल्स, कैश, बिल रिसीवेबल और इंटरेस्ट. और ये मिस्टर उदय है. अगर आप क्वेश्चन आगे पढ़ो, ज़्यादा समय सॉल्व करने में नहीं जाएगा. है तो सिंपल, बट क्योंकि कुछ लोग ड्रॉवर ड्रॉई में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूरा सम गलत कर लेते हैं. ओके, तो पहले तो हम शंकर है, हमने उदय को गुड्स बेचे एट 10% डिस्काउंट. इंपॉर्टेंट. कुछ लोग सिर खो जाते हैं कि सर इसका क्या करें. अरे जो आपको 11वीं में पढ़ाया, या अगर नहीं किया है तो बता देता हूँ. ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस करो, भूल जाओ, आपके मेमोरी से निकाल लो, आपकी किताब से निकाल लो, 10% को निकाल लो. कैश डिस्काउंट अलग होता है, वो जो हम इसके पहले सम्स में लिखे वो कैश डिस्काउंट है. ये है ट्रेड डिस्काउंट. माइनस कर लो जी 35,000 से और भूल जाओ. उसका कोई नफ़ा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स की किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो हम माइनस करके भूल जाएंगे. आगे. उदय पेड 1500 इमीडिएटली. अच्छा, तो उदय तभी के तभी पहले दिन पर. कौन से दिन पर? देखो, दिन तो बोला नहीं, हम लोग 1 2 3 4 5 6 करेंगे. एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months. प्लीज़ गलत फहमी में मत रहना, ये रिन्यूअल नहीं है. जैसे ही उदय ने गुड्स खरीदे, उसने 1500 दे दी और बोला बाकी का जो पैसा है वो मैं
बाद में दूंगा, तो उसके लिए बिल उसने साइन कर लिया। ये अपनी नॉर्मल शुरुआत है। बिफोर ड्यू डेट, अभी ड्यू डेट जब भी है, हमको तो डेट नहीं पता ना, क्योंकि डेट दिया ही नहीं है। ओके, तो हम तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे। उदय अप्रोच्ड शंकर विद अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अभी रिन्यू होगा, क्योंकि जब पेमेंट का टाइम आया, हो सकता है कि उदय बोलेगा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो जाओ शंकर के पास में जाता हूँ और थोड़ा मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। शंकर अग्रीड बट विद द कंडीशन दैट उदय शुड पे, क्या शुड एक्सेप्ट, नॉट पे, शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months। तो हम लोग शंकर उदय को बोल, देख भाई नया बिल तेरे को 3 महीने का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12%। ये इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन खत्म है। थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है। मैं पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे ही वो आ जाए रिन्यूअल का, हम उसको दोबारा पढ़ लेंगे। ओके, क्योंकि डेट नहीं है तो थोड़ा तो टेंशन हमारा वहीं पे कम हो गया। बट जो कैलकुलेशन है ट्रेड डिस्काउंट का, देखो ग्रॉस अमाउंट 35,000, ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है। जब आप 10% माइनस करोगे आपको नेट अमाउंट आएगा 31,500। ये सेल्स का अमाउंट है, उदय टू सेल्स। आपकी और हमारी पहली एंट्री इज नॉट फॉर 35,000, 10% माइनस करना है तो आपको 31,500 आता है। ये आपका डीलिंग का अमाउंट है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, सो 10% को आप माइनस कर लो और भूल जाओ। ओके, आप चाहो तो नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% TD, दैट्स फाइन, बट नॉट एनीवेयर एल्स। ये तो हो गया। दैट मीन्स वी वांट उदय आपको 31,500 देने। उदय ने क्या किया, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला पेड 1,500 इमीडिएटली। तभी की तभी उदय बोलता है सर आप पैसे रख लो ना, कैश रख लो। सो लेट्स सी कि जब वो हमको कैश देता है तो फिर हमको क्या करना है। देखिए मैं ये वाला बिना कोई एरोगिरी के, या आप बोल सकते हो एरोबाजी के, आपको बता देता हूं मैं। अगर आपको ये पीछे दिखता है, ये उदय है, ये वाला उदय है, और उसने 1,500 हमको दिया। अच्छा, तो इसने हमको पैसा दिया, तो आप या तो ख्याल में, कल्पना में, इमेजिनेशन में, या तो आप आपके डायग्राम में एरो बना लो। ओके, ये जो सिस्टम है डायग्राम का, ये आपकी मदद करने के लिए है। बट एग्जामिनेशन में प्लीज़ याद रखना डायग्राम इस तरह का अलाउड नहीं है। आप पेंसिल में बना सकते हो और इसको डेफिनेटली रब आउट कर देना। ओके, रखना मत, क्योंकि आपको या एग्जामिनर को सिर्फ डेबिट क्रेडिट से मतलब है, उसको कोई आर्टवर्क अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सीखना नहीं है। उदय ने हमको कैश दिया, तो अगर हम एरो बनाते हैं तो वो कैश के तरफ पॉइंट करता है। ओके, तो कैश अकाउंट हमको तो 2 3 4 5 ही लिखना है ना, वी डू नॉट हैव टू बी राइटिंग एनी डेट। 1,500 पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। बाकी का क्या, क्योंकि अगर वो 31,500 का माल हमसे खरीदता है और सिर्फ 1,500 देता है, तो बाकी तो 30,000 बच गया। उसका क्या कहा ऊपर, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। चलो समझ में आया, क्योंकि ये चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उधारी पे तो बात होगी ही होगी। तो बाकी के लिए हमने बिल ड्रॉ किया, उसने साइन करके दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट 30,000। तो बिल बना है 30,000 का, तो 3 महीने बाद 30,000 हमको उदय से मिल जानी चाहिए। बट 3 महीने बाद थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों, बट कुछ गड़बड़ हो जाता है। बिफोर ड्यू डेट, जो भी तारीख है पेमेंट का, उदय अप्रोच्ड शंकर विद अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। तो हमको तो रिन्यू करना पड़ेगा। शंकर अग्रीड बट विद द कंडीशन दैट, एक मिनट, रिन्यू में कितने स्टेप्स आते हैं, देख भाई 4 स्टेप आते हैं। उसमें ओल्ड बिल होता है 30,000 का, और 2 पार्ट होते हैं, एक कैश और एक न्यू बिल। कैश में जितना आता है बाकी का बचा न्यू बिल में आता है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो आपको ये नज़र ज़रूर आएगा क्या, कि शंकर अग्रीड, हम शंकर है, हमने बोला ओके चल रिन्यू करते,
बट विद द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, सीधे सीधे न्यू बिल फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12%, फुल स्टॉप। मतलब सर पार्ट पेमेंट दिखा नहीं, इतना पैसा अभी दे, इतना पैसा इमीडिएटली दे, दिखा ही नहीं हमको। तो पार्ट पेमेंट है क्या? तो भैया वही ये क्वेश्चन का रहस्य है कि पार्ट पेमेंट नहीं है। सो कैसे हो सकता है? 4 स्टेप के अंदर तो पार्ट पेमेंट होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। जब आता है तो मैंने उसका सीक्वेंस बताया है, बट कभी कभी होता है। अगर मैं और उदय, शंकर और उदय बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है यार उदय के पास तो पैसा ही नहीं है, उदय के पास पैसा नहीं है, छोड़ो ना यार, 3 महीने के बाद ही पैसा लेते, तो हम कुछ कैश नहीं लेंगे, पूरा का न्यू बिल बनाएंगे। तो न्यू बिल पूरा 30,000 का, प्लीज लुक दे। और क्योंकि अभी हम कुछ ले नहीं रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट भी हम उसी में जोड़ देंगे। आई रिपीट, इंटरेस्ट कितना जोड़ना है? आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने आपको परसेंटेज दिया 12%। नया बिल 3 महीने का है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपको कैलकुलेट करना है। आज भी बता रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको कैलकुलेट करना है कि 30,000 पे, याद रखना, आपको हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कहां पर भी जोड़ सकते हो, कभी इधर कभी कैश में, उससे कोई मतलब नहीं होता। कैलकुलेशन जो न्यू बिल का अमाउंट आता है हमेशा उस पे करना। मतलब आप जो ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो किस तरह करोगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि 12% कहा ना, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का है? 2 महीने, 2 या 3, क्योंकि क्वेश्चन मेरे 3 महीने आपको करने, क्योंकि ऊपर बोला है न्यू बिल 3 महीना है, मतलब डिले 30,000 का डिले 3 महीने का है। 30,000 12% 3 महीना। आप जैसे ही वो कर लोगे और आपको आंसर आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 900, ऐड कर लोगे तो 3900। दिस इज व्हाट इज अ लिटिल डिफरेंट इन द प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे, थोड़ा यहाँ पे कुछ अलग आएगा, थोड़ा वहाँ पे कुछ अलग है, कुछ ना कुछ तो अलग आने ही वाला है। इसमें कुछ इस प्रकार का रिन्यूअल है जहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं है, तो पार्ट पेमेंट की जर्नल एंट्री भी नहीं आएगी। ओके, जब आएगी हम उसको इग्नोर कर लेंगे। बट इंटरेस्ट सर 900 कैसे किया? नए बिल का अमाउंट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 3 महीना, 8 फॉर्मूला यूज किया और आ गया। पहला एंट्री क्या है? कैंसिल करो। बट देन वो बैंक नहीं है, बैंक नहीं है ये सब में। बिल आपके पास है, आप उठा के उदय को दे दो। बिल आपके पास है, आप उठा के उदय अकाउंट डेबिट। ओके, ऐसे भी होता है, क्यों नहीं होता है? जरूरी थोड़ी सर बैंक तो आता ही नहीं रे बाबा, कभी आता है कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम क्यों चिंता करें? क्योंकि अगर कोई आना नहीं चाहता हमारे साथ घूमने फिरने के लिए तो उसको फोर्स क्यों करें? मत आ, घर पे बैठा रहे। उदय अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, उदय अकाउंट टू, दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ रिन्यूअल, बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। इसके बाद आएगा इंटरेस्ट, जो है हमने 12% 3 महीना करके इंटरेस्ट का हिसाब किया है। तो इंटरेस्ट हमने उदय पे डाल दिया, उदय टू इंटरेस्ट, उदय टू इंटरेस्ट। चलिए जी, वो भी लिख लेते हैं। पेमेंट जो है ना, पार्ट पेमेंट, वो नहीं है तो उसका एंट्री हम कर नहीं पाएंगे, उसको स्किप, ओमिट, फॉरगेट। सीधे सीधे हम लोग नया बिल, आई रिपीट माई सेल्फ, पार्ट पेमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। हमने बिल बनाया, उसने साइन करके दिया 30,900, क्योंकि हमने कैश तो कुछ लिया ही नहीं उससे, हमने पूरा पैसा भी बाद में और इंटरेस्ट भी बाद में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में जो आया आपको। ओके, सो इसकी क्या एंट्री है? तो अपनी पुरानी एंट्री है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट 3900, ये नया बिल है। इसके आगे कहानी गई नहीं है। मतलब आप अगर क्वेश्चन देख लो ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12%, बस। सर आगे क्या हुआ? आगे सर ऑनर हुआ, रिटायरमेंट आप पढ़ा रहे हो, मुझको नहीं पता। सर कुछ तो हुआ रहेगा, हाँ बराबर है, कुछ तो हुआ रहेगा, बट मुझको नहीं पता। कहानी यहाँ तक दी है,
मैंने डायलॉग्स यहाँ तक लिख लिए, आगे का मेरे को नहीं पता, आपको भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ तक इसका ग्रैंड टोटल करके ढूंढ लेना है, 1,24,800, इतना ही जी, इतना ही। बस इसका जो रिन्यूअल था वो थोड़ा अटपटा था, लिटिल डिफरेंट, बट येस बिकॉज इट इज़ डिफरेंट मैनी पीपल गेट कन्फ्यूज्ड, और वो कन्फ्यूजन के अंदर उनका कैलकुलेशन गलत चला जाता है। अगेन जब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, तो पीडीएफ में आपको डेफिनेटली मैं कैलकुलेशन तो दे दूंगा, बट यहाँ पे जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ आ गया है तो कृपया करके लेक्चर को आप डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। अगर कोई सजेशन है हमारे लिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमारा ध्यान वहाँ पे जाता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो डाउट का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर आपको दे दे। आपकी मदद और जो बाकी के बच्चे देखते हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और पुराने हो तो कृपया करके आप हमारे लेक्चर्स को दूसरे लोगों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर लीजिए। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर और आशीष हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।